Hello, my dear friends. Myself, Alimuddin Sheikh Qadri, and my coaching classes is Qadri Coaching Classes. Through Qadri Coaching Classes and my YouTube channel is always, all of you know, Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, today we will have to discuss a very important point. Those who are very beneficial for the NEET and intermediate students. My dear friends, intermediate students means those students who are studying class 11th and class 12th. Means class 11th and class 12th up to NEET and AIIMS. So today we have give to the amazing topic through Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, first of all, we are discussing here what is the protoplasm. What is the protoplasm? Protoplasm क्या है? What is the protoplasm? My dear friend, protoplasm को सिंपल लैंग्वेज में अगर यूज किया जाए तो सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा यहाँ पर मैंने लिखा है 1868 साइंटिस्ट हक्सले, वैज्ञानिक हक्सले, उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रोटोप्लाज्म की डिफिनीशन को अगर सबसे पहले किसी ने दिया, those scientists, those who have gives the final and mature definition of the protoplasm, it only gives by the Huxley in 1868. So my dear friend, within this case, what is the protoplasm? प्रोटोप्लाज्म के विषय में क्या बता रहे हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इतना छोटा सा सेंटेंस देखिए आप, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इन अदर वर्ड्स, प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है. मैं आज इस कथन को पुष्टि करूंगा कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार क्यों है. माय डियर फ्रेंड, विदाउट प्रोटोप्लाज्म नो एनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव सर्वाइव, नो एनी टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सर्वाइव. इफ द एनी टाइप्स ऑफ सेल्स और एनी टाइप्स ऑफ अदर कॉम्बिनेशन, so many important points are studying here, are amazing points are studying here today through the Qadri coaching classes and YouTube channel. My YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. So my dear friend, first of all, I humble request to all of you, those students, those who have not been subscribed my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, because of I promise to all of you, I have already been given and all day given to a one lecture are uploaded in my YouTube channel. So always you have find to the amazing factor, and all of the teachers and all of the science faculties is simply be told to me a magician or biologist. My super name is the magician of biologist. My dear friend, today we will have the discussing here protoplasm. According to this theory, Huxley had told it is the basis physical of life. It is the basis physical of life. जीवद्रव्य ही जीवन का एक भौतिक आधार है. इसका मतलब यह हुआ, without protoplasm, the any kinds of animals are as well as the other categories, lower or higher categories of animals have not been survived. So my dear friend, what are basic importance of
प्रोटोप्लाज्म। माय डियर फ्रेंड, प्रोटोप्लाज्म के विषय में आपको सबसे जानना अति आवश्यक इसीलिए है कि जितने भी एनिमल्स हैं इसी प्रोटोप्लाज्म के विषय में मैक्स और सुल्जे नाम के साइंटिस्ट ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया, जिन्होंने अपनी थियरी को 1861 में दिया। कब दिया? 1861 में दिया। 1861 में जो थियरी इन्होंने दिया, उस थियरी के अकॉर्डिंग ये बोल गए सभी जीवधारियों का शरीर जीवद्रव्य की निर्मित इकाइयों से बना हुआ होता है। सभी जीवों का शरीर, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का शरीर एक विशेष प्रकार के लिक्विड से, एक विशेष प्रकार के द्रव से भरा हुआ होता है। Those types of liquid are simply be called protoplasm. Is it clear? Clear, my dear friend? It is simply be clear. Means protoplasm is the basis unit of life. It means without protoplasm our life have not been survived. Our life have not been survived. So my dear friend, this one is a definition of the protoplasm, and already we have discussing here, writing here, the protoplasm are divided. Their discussion are divided into 4 parts. First, composition and chemical nature. Composition and chemical nature of protoplasm. So my dear friend, जीव द्रव्य में उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, किस प्रकार से जीव द्रव्य बना, हमको सबसे पहले इस विषय में डिस्कस करना है। आइए इस विषय में डिस्कस किया जाए। Any types of protoplasm have made by the different types of elements for just as like you have seen this here: oxygen, carbon, nitrogen, calcium, iron, manganese, chlorine, phosphorus and potassium. Once again, oxygen, carbon, nitrogen, calcium, iron, manganese, chlorine, phosphorus and potassium. In these types of elements have combined together to form of a simple inorganic compound. My dear friend, when the simple inorganic compound have combined together to form of a complex inorganic compound, and complex inorganic compound is fully from simply we occur within the digging of earth, then they have fall to the simple organic compound. My dear friend, simple organic compound just as like methane, ethane, propane, butane, ethylene, acetylene, so as like so many organic compound have formed. And complex organic, this one is very simple organic compound, and complex organic compound, glucose, fructose, dextrose, mannose, sucrose, and those elements are very, very important for genetic materials transferred, those who have DNA and RNA, deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid. My dear friend, already we have telling to you, deoxyribose sugar, DNA, deoxyribose sugar, there is simple formula is C5PS10O4. And RNA ribose nucleic acid, their simple formula is C5PS10O5. Within the case of in these 2 points, we have already been discussing here, the molecular weight of RNA is the greater than molecular weight of DNA. मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या DNA ही पहला ऐसा कंपाउंड बना जो जेनेटिक कैरेक्टर को डाटा में ले आने का कार्य किया? क्या DNA ही पहला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना? नहीं। अगर DNA पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना तो और कौन से बने? भाई पेंटोज बन सकता है, क्या उसके पहले टेट्रोज नहीं बन सकता? क्या उसके पहले ट्राइयोज नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो फिर इनको क्यों नहीं कहा गया कि जो है कि ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का वर्क करते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस. विद इन द न्यूक्लियस those are simply we occur.
जो केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम क्यों नहीं आधार मान ले रहे हैं? इस विषय में हम आपको आइए समझाते हैं कि डीएनए के अंदर वो कैपेसिटी है, डीएनए के अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, पावर ऑफ रीजेनरेशन, पावर ऑफ रीजेनरेशन। यहां पर अगर रीजेनरेट कर जाएगा, सेकंड टॉपिक्स में दिया मैंने, अगर ऐसी कंडीशन डेवलप कर जा रही माय डियर फ्रेंड, ऐसी कंडीशन डेवलप कर जा रही है, डीएनए हैव नॉट बी मेड टू अदर टाइप्स, ही इज अ ड्राई, what happens? It means once again we have DNA analyzed, we have DNA aggregate or we have DNA originate. अगर डीएनए सूख भी जाता है फिर भी हम उस डीएनए को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ different types of materials. My dear friend, this was the simple thesis and simple structure and simple combination of DNA molecules. And DNA or RNA is the genetic molecules. Those are simply occur in the inside the nucleus. My dear friend, it is simply occur inside the nucleus, not be simply occur to the outside of the nucleus. It is simply occur inside the nucleus. So in this case, we have simply be told to you, this one is the genetic material. Who is the genetic material? DNA and RNA. My dear friend, those are simply be made by the different types of a chemical composition, chemical elements. For just as like within the case of DNA, adenine, guanine, cytosine and thymine, and within the case of RNA, adenine, guanine, cytosine and uracil. Means अगर डीएनए के केस को देखा जाए तो थायमिन पाया जा रहा है, आरएनए के केस को देखा जाए तो यूरेसिल पाया जा रहा है। तो ये these topics are completely belongs to the formation of DNA and RNA molecules, and those molecules are simply be occur inside the nucleus. ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, इट मींस द नेचर ऑफ न्यूक्लियस इज सिंपली एसिडिक। नाभिक का जो प्रोसेस होता है वो सिंपली एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय होने के कारण, एसिडिक होने के कारण आपने देखा कि इसीलिए कहा गया कि न्यूक्लियोप्लाज्म एसिडिक है। क्या बोला गया? न्यूक्लियोप्लाज्म एसिडिक है। इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियोप्लाज्म अगर एसिडिक है तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। इन सभी के फिगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, और मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत ही टॉप लेवल पर, बहुत ही हायर लेवल पर चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूं कि शेयर किया जा रहा है। और यही मुझे उम्मीद है आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद जो है शेयर करिए, लाइक करिए आप उसे। तो माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि हर्ज़ले के अकॉर्डिंग, और हर्ज़ले के साथ साथ ही मैंने बताया कि मैक्स और सुल्जे, दोज आर गिवन द थियरी ऑफ 1861, he was telling is a simple and very important topic. So all types of animal cells, their body are simply belongs to the in these types of unit, for just like to the DNA and RNA. But these are DNA and RNA have not been occurred in the prokaryotes because of in our previous channel, अपने प्रारंभिक जो है लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। अगला है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आप देखिएगा अभी अब तक कंपोजिशन मैंने बताया, इनका कंपोजिशन हुआ, कंपोजिशन होने के बाद ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हमने कहा कि ये जो है कोएसर वेट्स हैं। क्या है? कोएसर वेट्स हैं। कोएसर वेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। कोएसर वेट ही जो होते हैं वो प्रोकैरियोट की प्रारंभिक इकाई होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, माय डियर फ्रेंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट,
सब्सटेंस आता है वाटर का, जिसका अमाउंट मैंने बताया 75 अप टू 80% वाटर एंड अदर कंपाउंड्स। अगर हम साइटोप्लाज्म का डिस्कस कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में 75 टू 80% वाटर होता है, इसके बाद अदर कंपाउंड्स होते हैं। ये होता है इनका 70 टू 75 टू 80% वाटर मींस H2O, देन other components, other compound, not the element, other compound. Those types of compound, those who are simply made by the very easy way, बहुत ही साधारण तरीके से जो बने, simple inorganic compound, then it's convert to the complex inorganic compound. My dear friend, तो इस तरह से आपने देखा, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर आपने देखा, इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंडों की श्रेणी में सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं, जिसमें जिंक भी पाया जा रहा है। आइए जो कार्बनिक में 70 to 80% है, इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स है पॉजिटिव आयंस एंड मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स है नेगेटिव आयन। फॉर जस्ट लाइक वी आर गिवन द एग्जांपल, मैग्नीशियम आयन इज द पॉजिटिव आयन, पोटेशियम आयन इज द पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन इज द पॉजिटिव आयन, आयरन फेरिक आयन इज द पॉजिटिव आयन, Fe++, this one is the positive ions, and just like negative ion, chloride is the negative ions, कार्बोनिक एसिड में आपने देखा कि HCO3 इज द नेगेटिव आयंस, तो यहां पर हम देखा कि सल्फेट इज द नेगेटिव, SO4 सल्फेट इज द नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव भी जितना पाए जा रहे हैं उसी के रेशियो में नेगेटिव एलिमेंट्स भी पाए जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, एंड दिस वाज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड वी हैव सिंपली वी डिस्कस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। माय डियर फ्रेंड, पादप कोशिकाओं के अंदर 14 से लेकर के 16% तक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट 14 to 16%। ध्यान रखिएगा, ये सभी टॉपिक मैं जो है डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से बोल रहा हूं, और साथ साथ सिंगल की बुक से बोल रहा हूं, पेज नंबर 338 से। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि मेरे टॉपिक को जब चाहे जहां चाहे आप वहां चैलेंज दे लीजिए, मैं किसी भी टॉपिक के विषय में झुकने वाला नहीं हूं, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो, सारे कंफ्यूजन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताया कि यहां पर जो इकाई की यूनिट की बात की गई, यूनिट की बात की गई, इकाई की बात की गई, तो ये इकाई क्या है? ये इकाई जो है, ये इकाई अर्थात ये सेल है। तो ये सेल ही अपने पूरे शरीर की, पूरे लाइफ की इकाई है। और सेल की इकाई क्या है माय डियर फ्रेंड? ए प्रोटोप्लाज्म। विदाउट प्रोटोप्लाज्म एनी टाइप्स ऑफ सेल्स हैव नॉट बी सर्वाइव, नॉट बी अलाइव, नॉट बी डेवलप। सो विद इन दिस केस वी हैव सिंपली referred to the physical nature of protoplasm. Physical nature of protoplasm. Physical nature of protoplasm. My dear friend, there are three types of physical nature of protoplasm. There are three types of physical nature of four types of physical nature of protoplasm. अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा इरेज करके आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आप देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म है क्या। आइए देखते हैं, यहाँ पर 4 स्टेप का फिगर मैं ड्रा कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, एक फिगर मैंने बनाया, ये दूसरा फिगर मैंने बनाया, ये तीसरा फिगर मैंने बनाया, और ये चौथा फिगर मैंने बना दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 4 स्टेप जो मैंने बनाया है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अभी इसी पर आपसे क्वेश्चन राइज करूंगा। तो इसमें आप देखिएगा कि जो पहला दिया जा रहा है, इसमें ग्रेनुलर पार्टिकल्स जो है, ये ड्रॉप लाइक, एक बूंद की तरह से, एक कण की तरह से ऐसे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये ड्रॉप लाइक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कणिकामय सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, एक ग्रेन्युलर है। इसीलिए जो प्रोटोप्लाज्म को जो हमने फिजिकल नेचर देखा है, इस फिजिकल नेचर को मैंने कहा कि ये जो है ग्रेन्युलर थ्योरी में आते हैं, ये ग्रेन्युलर थ्योरी में आते हैं, जिसको कणिकामय सिद्धांत बोला गया, इसको कहा गया ग्रेन्युलर थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, ग्रेन्युलर थ्योरी। इस तरह से आपने देखा, ये ग्रेन्युलर थ्योरी में आ गए। अर्थात जो पहला प्रोटोप्लाज्म बना था
उस प्रोटोप्लाज्म का नेचर क्या था? ग्रैन्युलर था। माय डियर फ्रेंड, आज भी ऐसी स्थिति है, आज भी ग्रैन्युलर थियरी के बेस में पाए जा रहे हैं, ग्रैन्युलर थियरी में पाए जा रहे हैं। तो यह ग्रैन्युलर थियरी के विषय मैंने आपको बताया। आइए सेकंड टॉपिक्स के विषय में देखते हैं। सेकंड टॉपिक्स होता है फाइब्रिलर थ्योरी। फाइब्रिलर थ्योरी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फाइब्रिलर 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 थ्योरी। माय डियर फ्रेंड, फाइब्रिलर थ्योरी में आप देखेंगे इस तरह से ये फाइब्रिल एक तंतुमय की संरचना के रूप में, एक तंतुमय की संरचना के रूप में ये इस तरह से पाए जा रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि तंतुमय संरचना के रूप में पाए जा रहे हैं। इन्हीं संरचनाओं को मैंने कहा, इन्हीं संरचनाओं का नाम मैंने दिया, ये जो है फाइब्रिलर है। क्या है? फाइब्रिलर है। अर्थात इसमें तंतुमय संरचनाएं पाई जा रही हैं। इसी तंतुमय संरचनाओं के पाए जाने के कारण मैंने इसका नाम दिया फाइब्रिलर थियरी। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिए, क्या मैं बता रहा हूं आपको, भूल मत जाइएगा। ये मैं बता रहा हूं कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। जो नेचर और प्रकृति के विषय में आज मैं आपको अध्ययन करा रहा हूं, उसकी प्रकृति में आप देखिएगा, उसके नेचर देखिए, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए। एक तो ग्रैन्युलर हो गया, दूसरा फाइब्रिलर हो गया। तो फाइब्रिलर थियरी में आ गया। और मैं तीसरी थियरी के विषय में आपको बताना चाहता हूं, वह है रेटिकुलेट थियरी। क्या है? रेटिकुलेट थियरी। नोट करिएगा आपको, रेटिकुलेट थियरी। माय डियर फ्रेंड, रेटिकुलेट ये जालिका रूपी है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी थियरी है जालिका रूपी है, इसमें जाल जैसे बन रहे हैं, ये जालिका रूपी थियरी है और जाल की तरह से संरचनाएं बनती चली जा रही हैं। अर्थात ये जाल की तरह से एक दूसरे से पूरी तरह से, नेट की तरह से एक दूसरे से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अब ये नेट की तरह से बंधे हुए हैं, जाल की तरह से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से जो जाल की तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि जाल की थियरी इसी को कहा गया कि रेटिकुलर, अर्थात जालिका रूपी है। अर्थात साइटोप्लाज्म का आकार आपने देखा कि यह जालिका रूपी भी होता है। तो मैंने कहा है आपसे, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं डिस्कस करूंगा तो 4 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म को डिस्कस करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के विषय में डिस्कस कर रहा हूं। ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया। पहला है ग्रैन्युलर थियरी, दूसरा है फाइब्रिलर थियरी, तीसरा है रेटिकुलेट थियरी, और एट लास्ट में हम आपको लेके चलते हैं, एट लास्ट की थियरी बताते हैं कूपिकामय सिद्धांत, जिस कूपिकामय सिद्धांत को हम कहते हैं एल्वियोलर थियरी। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोलर थियरी। एल्वियोलर थियरी, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलर, अर्थात ये ग्रैन्यूल लाइक है। एल्वियोलर थियरी ये ग्रैन्यूल लाइक है, इसमें एल्वियोल पाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कर तो इसमें पाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ एयर बबल्स भी पाए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से एयर वैक्यूल के पाए जाने के कारण इस साइटोप्लाज्म को हमने एल्वियोलर थियरी का नाम दिया। किसका नाम दिया? एल्वियोलर थियरी का नाम दिया। जब मैंने एल्वियोलर थियरी का नाम दिया तो इस तरह से एल्वियोलर थियरी में आपने देखा कि एल्वियोलर थियरी में, अर्थात ये जो थियरी बन रही है, इस थियरी में आप देख रहे हैं, इस थियरी के प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्वियोल बन रहा है, अर्थात छोटी छोटी कूपिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के विषय में मैंने अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया कि 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैं। माय डियर फ्रेंड, आइए अगला टॉपिक आपको बताते चले इसी समय, ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एक जीव द्रव्य के मींस प्रोटोप्लाज्म के फिजिकल नेचर क्या है, भौतिक गुण क्या है। नोट करिएगा, मैं इसका फिजिकल नेचर आपको बताने चल रहा हूं। इसका पहला फिजिकल नेचर होता है कि यह अर्ध तरल है और एक चिपचिपा सा स्वच्छ पदार्थ है। फिजिकल थियरी है इसकी, अर्ध तरल के साथ एक विस्कस, एक चिपचिपा पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, अर्ध तरल भी है, साथ साथ चिपचिपा पदार्थ भी है। इसको भी देखा। दूसरी थियरी देखिए, यह जल से भारी तथा जल में अविलेय। जल से भारी है और जल में अविलेय है। माय डियर फ्रेंड, अगर यह जल में विलेय होता तो प्रोकैरियोट का डेवलपमेंट ना होता।
अगर ये जल में विलय होता तो प्रोकैरियोट का डेवलपमेंट ना होता। अगर प्रोकैरियोट का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जल से इनकी संरचनाएं कुछ भिन्न है। जल से इनकी संरचनाएं कुछ भिन्न है, अर्थात जल लाइक हैं, जल से थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा गाढ़े हैं, लेकिन कोलाइडियल इन नेचर में है। क्या नहीं, किस नेचर में है? कोलाइडियल इन नेचर में है। तो कोलाइडियल इन नेचर मैंने कहा, शब्द का प्रयोग सुनिए आप। कोलाइडियल इन नेचर मैंने कहा, कोलाइडियल इन नेचर मींस कोला मींस ग्लू, आइडियल मींस लाइक, ग्लू लाइक गोंद की तरह से संरचना के विषय में मैंने आपको अध्ययन कराया और बताया। इनकी संरचनाएं जो होती हैं गोंद के तरह से जो है ये क्लियर हो जाती हैं। इस तरह से आपने देखा। मैं अगली थियरी पर बता रहा हूं। जीव द्रव्य जो है ये प्रत्यास्थता आप समझ रहे हैं ना, इलास्टिसिटी, एक बार खींच लिया जाए, छोड़ दिया जाए, फिर वो जो है अपनी सीमा में चला आता है, वो इलास्टिक बोला जाता है। जिसको खींच कर छोड़ दे अपनी फिर सीमा में चल जाए। प्रत्यास्थता पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसको उसकी सीमा से परे खींच दिया जाए और पूरा लौट करके अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस न आ सके। अगर पूरा लौट करके अपनी वापस स्थिति में आ जाता है, इसको हम कहेंगे कि यह इलास्टिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें प्रत्यास्थता होती है, अर्थात यह अपने सामान्य आकार से 25 गुना अधिक फैल सकता है। प्रोटोप्लाज्म, इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर दिया गया, जो सामान्य संरचना दी गई, अपनी इस सामान्य संरचना से 25 गुना अधिक यह फैल सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इसका फैलाव हो सकता है 25 टाइम्स। अंदर में जीव द्रव्य में साल और जल दोनों प्रावस्थाएं पाई जाती। माय डियर फ्रेंड, मैंने अमीबा पढ़ाया, अमीबा की थ्योरी मेरे लेक्चर से नोट देख लीजिए आप लोग। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी को ओपन करिए और जो मर्जी है वो पढ़िए आप, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और जितने टॉपिक आप पढ़ेंगे मैं सारे टॉपिक का हवाला देकर के आपको पढ़ाऊंगा, मैं किस बुक से कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे टोटल वीडियोस को देखेंगे। एक भी पॉइंट कहीं से छूटा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नीट के बच्चों को क्वालिफाई कराता हूं, मैं IIMS के बच्चों को क्वालिफाई कराता हूं। तो इसको ध्यान में रख करके मैं अपना लेक्चर देता हूं। आइए मेरे अगले लेक्चर में देखा जाए, इसके टॉपिक में देखा जाए। मैंने कहा है कि इसकी इलास्टिसिटी पावर मींस प्रोटोप्लाज्म की इलास्टिसिटी पावर जो होती है अन्य टाइप्स ऑफ लिक्विड से 25 टाइम्स ज्यादा होती है, 25 गुना ज्यादा होती है। और लास्ट में देखा जाए, अगर ये साइटोप्रोटोप्लाज्म है, इनमें एक विशेष प्रकार की मोशन, विशेष प्रकार की गति होती है, जिस गति का नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। क्या नाम दिया गया? ब्राउनियन मोशन। अर्थात ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिग-जैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, एक लीनियर वे में मोशन कभी नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लीनियर वे में मोशन कभी नहीं करते, ब्राउनियन वे में मोशन करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। इनका मोशन जो होता है वो ब्राउनियन वे मोशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, एज जस्ट लाइक, जैसे यहां से आपने चला तो इस तरह से ये चलेंगे, ऐसे ऐसे घूम कर, देख रहे हैं आप। अगर इसको सीधी लाइन में कर दिया काफी बड़ी लाइन हो जाएगी। ये ब्राउनियन मोशन में चला तो छोटी लाइन में है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता रहा हूं, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। ये ब्राउनियन मोशन के विषय मैंने आपको बताया कि ये ब्राउनियन मोशन जो ये है, ये ब्राउनियन मोशन है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गति इनकी स्पष्टतया दिखाई दे रही है। तो माय डियर फ्रेंड, तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करके मैं बताता चल रहा हूं। आइए देखते हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जरा सा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि ये तो सेल थियरी के विषय मैंने बताया, प्रोटोप्लाज्म के विषय बताया, साइटोप्लाज्म के विषय जीव द्रव्य जो है, और इसकी प्लाज्मा लेमा के विषय में देखा जाए, झिल्ली के विषय में देखा जाए, तो यहां पर मैंने एक सेल मेम्ब्रेन को बनाया है। सेल मेम्ब्रेन ये सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया है। सिंगर और निकोलसन, कौन कौन दिया है? साइंटिस्ट दिया है, सिंगर और निकोलसन ने अपने इस मॉडल को दिया है। तो सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है, वो सिंगर और निकोलसन का मॉडल आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हैं। सिंगर और निकोलसन ने अपने मॉडल को किस तरह से मॉडिफाई किया है,
किस तरह से अपने सिंगर और निकोलसन ने अपने मॉडल को दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, सिंगर और निकोलसन ने जो अपना मॉडल दिया, इस सिंगर और निकोलसन के मॉडल में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाई लेयर ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल लेयर ऑफ लिपिड, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल लेयर ऑफ लिपिड, ये सारे टॉपिक आते हैं इसमें। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये प्रोटीन की लेयर है, और प्रोटीन आर सिंपली बी अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, वन इज द बेसल प्रोटीन एंड अदर इज द इंटीगर प्रोटीन। एक बेसल प्रोटीन होता है और एक इंटीगर, जो अंदर से जो धस करके आप देख रहे हैं, ये अंदर से धस करके ये बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। और जो प्रोटीन की लेयर बेस पर होती है उसको बेसल प्रोटीन, ये बेसल हो गया, ये बेसल हो गया और ये इंटीग्रल हो गया। माय डियर फ्रेंड, इंटीग्रल का मतलब होता है जो पेनिट्रेट करके ऐसे बाहर निकल जाए, इस तरह से बाहर निकल जा रहा है, इस तरह से बेचते हुए बाहर निकल, इसको इंटीगर बोला जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। ये प्रोटीन के 2 लेयर। ऐसा क्यों होता है माय डियर फ्रेंड? प्रोटीन के कंपाउंड जो होते हैं वो अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। यदि वो अपने शेप, साइज, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसमें मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। मैंने अलीमुद्दीन शेख कौदरी इस सिंगर एंड निकोलसन मॉडल की व्याख्या किया, जिसमें आप ये 2 टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया ऑलिगोसैकेराइड चेन। क्या बोला गया? ऑलिगोसैकेराइड चेन। यहां पर भी आप देख रहे हैं ऑलिगोसैकेराइड की चेन पूरी तरह से फैली हुई है। अगर आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रहा, मैं रेड कलर में कर दे रहा हूं इसको। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से यहां से ये फैली हुई है, इस तरह से ये पूरी तरह से ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती है। ऑलिगो मींस ऑलिगोसैकेराइड है, शर्कराएं हैं ऑलिगो फॉर्म में, ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती हैं। और उसके नीचे देखा आपने यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल। यहां पर ये बताया गया यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल में कि यहां पर ऊपर की साइड में यहां पर ये जो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, उन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल से ये फाइब्रिल निकले हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, जो फाइब्रिल निकला हुआ है, यह फाइब्रिल ये शो कर रहा है, यह फाइब्रिल यह शो कर रहा है कि यह क्या है, यह ऑलिगोसैकेराइड की चेन है। क्या है? ऑलिगोसैकेराइड की चेन है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको सिंगर और निकोलसन के मॉडल की व्याख्या किया, और सिंगर और निकोलसन के मॉडल में मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिमखंड, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिमखंड। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिंगर और निकोलसन की थियरी बोल रही है माय डियर फ्रेंड। इसको मैं नहीं बोल रहा, सिंगर और निकोलसन की थियरी बोल रही है। क्या बोल रही है? फिर से सुनिएगा, सिंगर और निकोलसन की थियरी बोल रही है कि प्रोटीन, सिंगर और निकोलसन थियरी बोल रही है कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये ऑलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल में आसानी पूर्वक इस तरह से धसे हुए हैं कि ये लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिमखंड हैं। लिपिड के समुद्र में, लिपिड है ना सब, बाइलेयर और लिपिड, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन का मॉलिक्यूल धसा हुआ है। इस तरह से आपने देखा कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन का मॉलिक्यूल धसा हुआ है, और यहां पर प्रोटीनों को मैंने डिवाइड कर दिया, इंटीगर प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीगर प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, वी हैव सिंपली वी डिवाइडेड इट। मैंने समान रूप से इसको डिवाइड किया। एक सिंपली प्रोटीन होते हैं, कि इंटीगर प्रोटीन होते हैं। इस तरह से आपने निकोलसन के मॉडल को देखा, सिंगर और निकोलसन के मॉडल को देखा, और अब यहां पर आप देखेंगे कि इनके मॉडल के बाद जो है, अब मैं आपको और सारी थियोरियों के विषय में डिस्कस कराऊंगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, मैं एक फुल लेक्चर जो है सिर्फ प्रोटोप्लाज्म पर दिया और सेल मेम्ब्रेन पर दिया। सेल मेम्ब्रेन, माय डियर फ्रेंड, a type of membrane those who are fully covered with cells। सेल मेम्ब्रेन क्या, जो कोशिका को पूरी तरह से घेर लेती हो, बांध लेती हो। अगर कोशिका को पूरी तरह से बांध लेती है, इस तरह से आपने देखा कि यह कोशिका कला कही जाएगी। और कोशिका कला के विषय मैंने जो भी टॉपिक, जो भी शीर्षक, जो भी उन्वान मैंने दिया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से आज मैंने प्रोटोप्लाज्म और जो है
ये सलवाल के विषय में आपसे डिस्कस किया और बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे सारे भाईगण इसको पूरी तरह से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपना पर डे एक लेक्चर अपलोड करता रहूंगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूं। और इस बात का ध्यान रहे कि आप लोगों जो है इसका पूरी तरह से नोट प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक आ रहा है माय डियर फ्रेंड। उसको ध्यान में रख करके मैं सारा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा लेता हूं इसी के साथ। थैंक यू।